Hello friends, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we were dealing with the science book of standard 6, new approach to science, and we were dealing the last chapter, 12th chapter. Already we have completed all the other chapters of this book. And in this 12th chapter, name was electricity and circuit. We have already done one part of this chapter, and today we will be doing the second part of this chapter. We were reading about sources of electricity, sources of electric current. In that we have read about electric cell and torch bulb. We have read that both electric cell and torch bulb have got two terminals which do not touch each other, and thereby the circuit gets completed. They have got two terminals each, electric cell also and electric torch bulb also. Now we will read about connecting wires. The wires in the circuit are called leads or electric cables. These wires are made up of metals. Metals conduct electricity. They allow electricity to pass through. To make the wire safe to touch, it is usually covered with plastic, as plastic is a bad conductor of electricity. To make the bulb light, the metal wire must touch the battery and the bulb connector holder, a bulb connected to an electric circuit. Let us try to make an electric bulb using an electric cell and connecting wires. Electric current flows only when electric circuit is complete. Two pieces of plastic coated wire about 20 cm long with bare ends, a screwdriver, a masking tape, 1.5 volt battery, 1.5 volt bulb with a holder. Tape one end of a battery terminal with one end of a piece of wire. Connect the other end of the wire to the bulb holder. Does the bulb light? Connect the other circuits as shown in figure and check the connection. When the bulb lights up, you will notice that the bulb lights up only when the circuit is complete as shown in the figure. The direction of electric current is taken from positive terminal of the cell to the negative terminal through the external circuit. जो हम लोग सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, और हमने ये भी जाना कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स को जोड़ते हैं तो वो एक बैटरी बनता है. इसी तरह हमने पढ़ा कनेक्टिंग वायर्स टॉर्च बल्ब के बारे में कि उसमें भी जो बल्ब के नीचे का जो बेस होता है, मेटल बेस होता है, तो बेस के ऊपर का पार्ट जो टिप ऑफ द बल्ब है वहाँ पे एक टर्मिनल होता है और वो बेस के मिडिल में सेंटर में एक टर्मिनल होता है. अब हम लोग कनेक्टिंग वायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी घरों में सर्किट हो कि कुछ भी अप्लायंस हो उसमें जो वायर लगे रहते हैं उनको लीड्स कहते हैं या इलेक्ट्रिकल केबल्स कहते हैं. ठीक है, ये सारे वायर जो है वो मेटल के बने रहते हैं क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होता है. हम लोग को इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग लगा रहता है. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो लोग मेटल्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए. ठीक है, पर हम लोग ऐसे टच करेंगे तो मेटल गर्म हो जाएगा या करंट हमको शॉक लग सकता है, इसीलिए सेफ़ हो टच करने के लिए इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग दिया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर है. प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर बाहर हमारे हाथों पे नहीं आ पाएगा. ठीक है, अब एक बल्ब को हम लोग को जलाना अगर है तो हम लोग को जो है बल्ब के साथ एक वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और जो है दूसरे वायर के दूसरे एंड को बल्ब के होल्डर के साथ कनेक्ट करना होगा, बल्ब कनेक्टर के साथ. ठीक है, मेटल वायर को बैटरी से भी टच करना होगा और बल्ब कनेक्टर के साथ भी. ठीक है, दो एंड जो होगा. इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें एक तरह का इनर्ट गैस भरा रहता है. अच्छा, क्या है कि कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं. तो जैसे कि है हीलियम गैस, नियन गैस. ठीक है, तो ये सब तो जो है इलेक्ट्रिक बल्ब कांच का है, उसके भीतर एक फिलामेंट है एक मेटल का, आप जानते ही हैं. और क्या है कि वहाँ पे जो है एक तरह का इनर्ट गैस भी भरा रहता है जो रिएक्शन नहीं करता है, किसी साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो भरा रहता है ताकि फिलामेंट जो है जैसे जैसे बल्ब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया, बल्ब जलने लगा, फिलामेंट जलने लगा, जलते जलते फिलामेंट बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो सकता है बिल्कुल. ठीक है, और जल नहीं जाए, हॉट होकर जल नहीं जाए, इसलिए वहाँ पे एक इनर्ट गैस भरा रहता है. अब है कि एक बल्ब का कनेक्शन करना है एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ. ठीक है, उसके लिए एक्टिविटी दिया गया है आपके बुक में कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए और जो है इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि एक बैटरी लिया है. ठीक है, 1.5 वोल्ट का बैटरी लिया है, उसके साथ वायर को कनेक्ट किया, उसके एक टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करते हुए जो है
वो जो है बल्ब के होल्डर में उसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर जो है और एक जो है वायर लिया गया है और एक वायर को लाके बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल बच गया था वहाँ से कनेक्ट करके बल्ब का भी जो है, एक तो होल्डर के मिडिल में होता है टर्मिनल और एक टिप पे, तो टिप पे बल्ब के टिप पे उसको जॉइन किया गया है। ठीक है, और सबको कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी को, बल्ब को, 2 वायर से सब कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद जब ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। पर बल्ब कब जलेगा, उसका कंडीशन है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, वायर का पूरा एक सर्कल जैसा होना चाहिए। वायर एक जगह जाके बैटरी से कनेक्ट हुआ, बैटरी से वायर निकल के आके बल्ब के होल्डर में कनेक्ट हुआ। अब क्या है कि जैसे पिछले समय से कन्वेंशनल टाइम से जैसे माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी का पॉजिटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव से लेके होके नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। वो इलेक्ट्रिक करंट का वहीं पे ये है डायरेक्शन है। वो भी एक्सटर्नल सर्किट में, आपके बुक में आप एक डायग्राम देख सकेंगे। वहाँ पे जो बैटरी का जो ऊपर में एक उठा हुआ सा पार्ट रहता है, मेटल का पार्ट, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। वहाँ से वायर से कनेक्टेड है बल्ब, फिर बल्ब से कनेक्टेड है बैटरी का नीचे वाला टर्मिनल। तो वही ऊपर वाला जो उठा हुआ मेटल का पार्ट रहता है, वहाँ से करंट फ्लो हो के नीचे वाले टर्मिनल में जाता है। अब हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बैटरी इज मेड अप ऑफ 2 or more cells joined together. You must always connect the positive terminal of one cell to the negative terminal of another cell. If you connect cells with 2 positive terminals together, the circuit will not work. In the same way, a battery will not work if you convert 2 negative terminals together. A torch usually has more than one cell. Look at the schematic diagram of an electric torch. The 2 cells are placed in such a way that the negative terminal of one cell touches the positive terminal of the other cell. The battery is connected through a switch to the bulb of the torch. When you switch to the button of the torch, the circuit gets completed and the bulb glows. When you turn off the switch, the circuit is broken. The electric current does not flow through the circuit and the bulb does not glow. अब हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया है तो वो बैटरी बनता है। ठीक है, अब है कि इस तरह से सेल को जोड़ना है कि ऊपर वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साइड में दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल आओ, फिर दूसरे वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साइड में तीसरे वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आए। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के पास कनेक्ट करना है वायर के थ्रू। ठीक है, तो जो है इस तरह जो है अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि नहीं, सेल के एक सेल है मेरे पास, 2 सेल है, 2 पेंसिल बैटरी से 2 सेल, दोनों के पॉजिटिव को पास में हम रख देंगे। ठीक है, और फिर उसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा करने से बैटरी बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, या तो 2 पॉजिटिव टर्मिनल को पास में नहीं रखना है, 2 नेगेटिव टर्मिनल को भी पास में नहीं रखना है, तब उसमें वह काम नहीं करेगा। आप लोग जो है एक इलेक्ट्रिक टॉर्च का डायग्राम को देखेंगे तो 2 सेल इस तरह से प्लेस किया गया है कि नेगेटिव टर्मिनल जो एक सेल का है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को टच करेगा। फिर जो है बैटरी को जो है एक स्विच से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और स्विच से होके फिर वो बल्ब के पास जा रहा है। जैसे ही हम लोग बटन ऑफ द स्विच दबाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट ब्रोकन हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, आपके बुक में आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि 2 सेल को जोड़ा गया है। ठीक है, सही कनेक्शन करने के लिए, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव। ठीक है, उस तरीके से, पर अगर 2 पॉजिटिव है तो उस तरह से सर्किट काम नहीं करेगा। समझ गए ना, बैटरी का जो उठा वाला मेटल पार्ट है वो उसका पॉजिटिव है, उसको दूसरे बैटरी के बेस के साइड में इसको रखना है। अब आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की बात। An electric circuit is a closed path through which electric current flows from one end to the other. An electric current always needs a power source such as a cell with wires connected to the positive and negative terminals. The wires connected flows from the positive terminal to the negative terminal of the electric current.
A circuit can also present in other electrical components such as bulb, tubes, mixer, washing machine, microwave, drilling machine, air conditioner, motor, etc., which allow electricity to pass through. Electricity only travels around a circuit that is complete or octet. The electric currents will not flow to the circuit which is broken. Such circuits are called open circuits. In general, simple electric circuit consists of connecting wires which help to conduct the electric current, and in completing the circuit, a bulb which lights up when electric current flows through it, a switch which keeps the circuit off or on, a cell that provides energy to the current for the current to flow in the circuit. Never join wire connected to terminals of the electric cell direct. If it is done, the chemicals of the electric cell get used up very fast and the cell will stop working. अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वो एक क्लोज पाथ है, एक पूरा बंद सा रास्ता है, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट एक एंड से फ्लो होकर दूसरे एंड पे आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा पावर सोर्स का ज़रूरत है, आखिर उसको हम लोग कहीं से एनर्जी देंगे ना, तो उसके लिए हम लोग एक सेल लगाते हैं उसमें और उससे वायर से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जो है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो इसमें देखिए आप डायग्राम में क्या किया गया है, एक सेल ऊपर है, नीचे एक बल्ब है, सेल का जो उठा वाला पार्ट है पॉजिटिव टर्मिनल, उधर से करंट आ रहा है और वापस घूम के जा रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे बल्ब में होता है, ट्यूबलाइट में होता है, मिक्सर ग्राइंडर में, माइक्रो ओवन में, वॉशिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में या मोटर, सब में जो है क्या रहता है, सर्किट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रैवल करेगा जब क्लोज सर्किट रहेगा, ठीक है, स्विच ऑन रहेगा, उसने सर्किट को पूरा बंद कर दिया है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो सर्किट जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ट्रैवल कर सकता है वो सर्किट कहलाएगा कंप्लीट और क्लोज्ड। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रैवल करेगा जब सर्किट कंप्लीट या क्लोज्ड होगा। इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में नहीं जाएगा जो कि टूटा हुआ है। तो ऐसा सर्किट जिसमें कि जो खुला है, जो पूरी तरह से जॉइंट नहीं है, तो ओपन सर्किट कहते हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक तो कनेक्टिंग वायर्स होता है, आप जानते हैं, जो कि कंप्लीट कर सर्किट को। एक बल्ब होता है जो लाइट अप करता है जब आपको पता चलता है कि हाँ करंट जा रहा है इसमें। एक स्विच होता है जो कि सर्किट को ऑफ या ऑन करने में मदद करता है। और एक सेल होता है जो कि एनर्जी देता है करंट को कि वो इस सर्किट में घूमे, ठीक है। फ्यूज्ड बल्ब, sometimes an electric bulb does not go even if it is connected to the cell or some other sources of electricity. Such bulb is said to be fused if the filament is broken and its contact with the supporting wires is finished. A break in the filament means a break in the path of current between the terminals of the electric cell. Let us do an activity that how a bulb lights up during an electric cell. Using an electric cell. तो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, अब फ्यूज्ड बल्ब के बारे में पढ़ोगे। कई बार जो होता है हमने स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट है, फिर भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, चमक नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे बल्ब को हम लोग फ्यूज बल्ब कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसके भीतर का फिलामेंट ना टूटा हुआ रहता है, ऐसा लटका हुआ रहता है और हल्का हल्का हिल रहा होता है, ठीक है। और जो है उसके साथ जो सस्पेंडिंग वायर्स उसका दो जुड़ा हुआ था फिलामेंट के साथ, जो कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, वो वहाँ से तो वो टूट ही गया है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो है ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। कनेक्टिंग वायर होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। फ्यूज़ बल्ब क्या होता है, इसका फिलामेंट टूटा रहता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक स्विचेस और की। इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. They are available in various sizes and shapes. The switches used in lighting of electric bulb and other devices in home work on the same principle. In homes work, when the switch is open off, there is gap in the circuit. At this time, electric current will not travel around the circuit. When a switch is closed, it makes the circuit complete and the electric current will travel around the circuit. ठीक है. अब क्या है कि जब भी हम लोगों को कोई बल्ब को जलाना हो या कुछ दूसरा घर में काम करना हो, तो वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट कर जाएगा. जब स्विच ओपन या ऑफ है तो यानी सर्किट में गैप है, सर्किट पूरा जॉइंट नहीं है, उस समय इलेक्ट्रिक करंट पूरा ट्रैवल नहीं करेगा. और जब स्विच क्लोज है तो वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से ट्रैवल करेगा. A fusible link is a safety device that prevents a large amount of current flowing into a device or appliance.
Electric conductors and insulators. Some materials allow electric current to pass through them, whereas other materials do not allow electric current to pass through them. On the basis of this, materials can be divided into two groups: conductors and insulators. Conductors. The materials that allow electric current to pass through them are called conductors. All metals are good conductors of electricity. Carbon in the form of graphite is the only non-metal which is a good conductor of electricity. Human body is a good conductor of electricity. Impure water is a good conductor of electricity, whereas pure water is a bad conductor. अब जो है हमने स्विचेस और की बात की, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करोगे। कुछ ऐसा मटेरियल होता है, कोई ऐसा मेटल भी होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को वो पास करने देता है अपने बॉडी से होके, तो उन सबको हम लोग कंडक्टर कहेंगे, और जो नहीं पास करने देगा उनको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। तो ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहा है उनको हम कंडक्टर कहेंगे। सारा ही मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैक्सिमम मेटल सब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, आपने पढ़ा कि मेटल्स सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बहुत सारे जो है नॉन मेटल्स नहीं होते, पर कार्बन एकमात्र नॉन मेटल है, वो भी किस रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम लोग को शॉक लग जाता है, करंट लगता है कई बार, कि हम लोग अगर किसी प्लग को टच कर लिए तो हम उनसे करंट होकर हमारे बॉडी में से होकर ज़मीन में चला जाता है, उससे हम लोग को करंट लगता है। ठीक है, इम्प्योर वाटर, जिस वाटर में पूरा प्योर नहीं है, कुछ मिनरल सॉल्ट्स की कुछ अलग अलग तरह का इम्प्योरिटी है, वो भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। पर है जो कि प्योर वाटर, जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता ही है। ठीक है, इंसुलेटर क्या है? जब जो है मेटल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देते हैं उनको इंसुलेटर कहते हैं। कैसे मटेरियल? जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, इसलिए आपने देखा होगा बर्तन के हैंडल्स किसके, प्लास्टिक के बने रहते हैं। तो प्लास्टिक है, रबर ग्लव्स हम लोग पहनते हैं, या वुड है, लकड़ी है, ग्लास है, या पॉलीथीन है, ठीक है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो फाइबर का सामान सब है, वो सब इंसुलेटर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जब काम करते हैं तो क्या करता है, वो रबर ग्लव्स पहन लेता है जब वो काम करता है, क्योंकि रबर एक गुड इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्विच है, प्लग है या सॉकेट सब जो है वो सब कंडक्टर का बना रहता है, जबकि रबर और प्लास्टिक जो है वो कंडक्टर का नहीं बना रहता है, वो करंट को नहीं पास करने देता है। इसलिए जितना भी इलेक्ट्रिकल वायर है उसके ऊपर जो है रबर लगा रहता है, प्लग वगैरह सब प्लास्टिक का बना रहता है, टॉप स्विचेस सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी जो बॉडी है वो प्लास्टिक का बना रहता है। अब है कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के क्या नुकसान है, उससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला रहे हैं तो आप चप्पल पहनिए, स्लीपर्स पहनिए और रबर के ग्लव्स पहनने चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच या अप्लायंस को भींगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। और जब आप रिपेयर करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को तो आपको देखना चाहिए कहीं वो मेन से तो कनेक्टेड नहीं। अगर मेन से कनेक्टेड है तब तो वो ऑन रहेगा और उससे करंट आ जाएगा, इसलिए उसको पहले आपको देख लेना चाहिए। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्दी हम लोग जो है क्लास 7 के वीडियोज़ में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।